Minister. And these both people are separate. That means the President is a nominal head. He is just a head. But all the powers which are being given to the Prime Minister are being exercised by the Prime Minister. Means most of the important actions are taken by the Prime Minister. There is no clear-cut separation of powers between the executive and the legislature. The executive is responsible to the legislature for its action. So we cannot say there is a clear-cut separation of power. It means that there are not certain proper rules that this needs to be followed by this or this. Obviously, there are some rules and laws that need to be followed because there are laws and we need to follow that in our country. The executive is responsible to the legislature. Same thing comes in the executive is answerable to the legislature for its action. The Indian Parliament. So this is the structure of the Parliament. Why don't you give some break? Why don't you ask some questions? You have covered maybe broad two topics. Yes. So ask some questions. Get some idea from the. Okay, my But be question. very well. Okay, everyone can answer the question. What were the reasons for adopting the parliamentary system of governance? As observed by our nationalists during colonial rule, there was not equality in decision making. Thus, they decided to follow the universal adult suffrage or universal adult franchisee, which means that all the citizens above 18 are allowed to vote irrespective of their caste, background, religion, participation. Yeah, that is somewhere correct, but can you any more clear answers? What made the nationalists to opt the parliamentary system of governance? One main point. Why nationalists of the parliamentary form of government? Nationalist means Mahatma Gandhi, Nehru, Tagore. Freedom fighters of that era. Anyone? It's okay. She has explained here now. So answer something from your side. Would you like to answer? And the question? The question is, what was the reason that the nationalists opted the parliamentary system of governance? The nationalist of nationalist ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए लिया था क्योंकि वो बेस्ट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाने के लिए. उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, सब एक है, पीपल दूसरे को इलेक्ट करते हैं. नो वन कैन यूज देयर पावर टू कंट्रोल पीपल. Yes, sir. Okay. Now there is something about the Indian Parliament. It's just a thing. So our Parliament consists of the President, which is the head, and the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So the Indian Parliament consists of the President and the two houses of the Parliament, that is the Lok Sabha, the lower house, the Rajya Sabha, the upper house. Lok Sabha consists of the representatives that are directly elected by the people, whereas Rajya Sabha consists of the representatives which are nominated. So, any questions? Any doubts? Feel free to ask. Yes. Ask your question. Yes, there may be some good question from you. You can ask. Feel free to ask any question. क्वेश्चन पूछो. जो राज्यसभा में एमपी होते हैं उनको कौन करता है? बेसिकली जो हमारा लोकसभा होता है लोअर हाउस, उसमें से ही कुछ लोगों को जो हमारी जो आपकी गवर्नमेंट होती है उन्हीं से उन्हें नॉमिनेट किया जाता है और उस पोजीशन पे कौन स्टार्ट करेगा. तो इनडायरेक्टली पीपल ने जिन्हें इलेक्ट किया वो आगे जाके राज्यसभा में हमें रिप्रेजेंट करते हैं. वो गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट का पीपल पार्टी का जिस पार्टी का भी कोई भी आपका मेंबर होता है वो पार्टी ही उनके नाम आगे फॉरवर्ड करती है फॉर राज्यसभा. राज्यसभा में जो इलेक्ट होते हैं उसमें अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं. कुछ तो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं बाई वोटिंग,
एंड सम रिस्ट्रिक्शन, मतलब सभी वोट नहीं डालते उसमें, वो कुछ लोग डालते हैं जैसे ग्रेजुएट होते हैं कुछ ऐसे। तो राज्यसभा एक अलग ही तरह का स्ट्रक्चर है ना। जैसे मान लो देश में बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब साइंटिस्ट हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़े है ना, वो अपने काम में इतने लगे हुए हैं। जैसे इसका नाम ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर है ना, खेलता रहा, देश का नाम दुनिया में रोशन करता रहा, वो इलेक्शन के लिए ओरिएंटेड नहीं हो सकता। वो इलेक्शन फाइट करे, जीत सके, उसके बस की बात नहीं है। बट बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ना हमारे देश का, सबसे बड़ा रिसोर्स में गिना जाता है। ऐसे में कि ऐसे ही मान लो कोई एजुकेशनिस्ट है, बहुत सारी सैकड़ों किताबें लिखी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को नया आइडिया दे रहा है पूरे देश को चलाने के लिए। उस ऐसे लोगों की भी जरूरत है ना वहाँ पे पार्लियामेंट में, देश को चलाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसमें जनता तो किसी को भी चुन के रह सकती है। आप सब जानते हैं ना, कुछ बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत अच्छे नहीं होते, कुछ तो क्रिमिनल भी होते हैं। तो हम बैलेंस करने के लिए एक राज्यसभा का भी पैटर्न रखा है, जहाँ पे अगर इलेक्शन के थ्रू नहीं तो हम उसके अच्छे परफॉर्मेंस और हमारे देश के लिए अच्छे रिसोर्स के तौर पे उसको हम डायरेक्ट पे लेके आते। तो वहाँ पे इलेक्शन के एक नहीं 3 अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग को प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट कर देते हैं, कुछ अलग अलग स्टेट से जो एमएलए हैं वो भी कुछ इलेक्ट करके भेजते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट वोट करके ही भेजते हैं। ऐसा तो ये भी पार्ट है कि जो आपके थ्रू आउट द कंट्री देयर आर सेवरल ग्रुप्स जहां में चांस नहीं मिल पा रहा है, जो ट्राइबल है या एससी से, सर उनके लिए अलग से रिजर्वेशन लगाने की इतना परसेंटेज जो होगा वो हमारे एससी एसटी होंगे, जिससे कि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए और वोट करने के लिए। और सर आई थिंक 30% सीट का ऑप्शन होगा। 30 कैसे बोल सर 40% सीट का ऑप्शन होगा। देखो अब फिर से बोलो। सर आई गेस 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन आल्सो। 30% seats are reserved for women also. Says Delhi. क्या कहेंगे आप? What do you have idea about the women reservation in parliament? Do you have any idea? You are trying to say something. Bolo. हाँ? सोच रहे गुड। और कोई? मतलब 30% है तो 50% होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए ना। 30% है तो 50% होना चाहिए। और तुम एक्सप्लेन करो, मुझे आइडिया नो। विमेन रिजर्वेशन जैसे इसने बताया ना, एससी कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एसटी के रिप्रेजेंटेशन वहाँ मिल गया है ना। तो ऐसे ही कहा गया कि विमेन का भी पार्लियामेंट में बहुत संख्या कम है, और दूसरा कि विमेन मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस में और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कम होती है ना। उसके पास अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, कुछ उसकी अपनी प्रॉब्लम भी है, कुछ जागरूकता की कमी, कुछ एजुकेशन में कमी है, कुछ मौके भी कम दिए जाते हैं। किसके द्वारा? सोसाइटी से ज्यादा ऊपर किसके द्वारा? सर गवर्नमेंट। उसके अपने ही घर में जो उसके फादर होगा, उसके ब्रदर होगा, उसके जो हस्बैंड होंगे, इवन उसके सन, ये लोग भी उनको सपोर्ट या प्रमोट इस काम के लिए नहीं करते, और अच्छे काम और दूसरे काम के लिए उनको टीचर बन रहे हो सपोर्ट कर रहे हैं, नेता बन रहे हैं तो दे हैव सम नेगेटिव फीलिंग। so there are so many reasons na women are not able to come in front and to lead the country. Sir, they are suppressed by Even suppressed by बहुत सारे इश्यूज हैं, पर अभी सबको ना ले। तो मतलब क्या निकला कि बहुत सारे विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने और मेल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोग हैं जैसे सेवन में, उन्होंने यह सवाल उठाया और ये रिजर्वेशन की डिमांड की। कहाँ? पार्लियामेंट। बिल भी पेश हुआ, 15-20 साल पुरानी बात है, और 30 नहीं है, 33% है, 1/3। और वो बिल आज तक 15-20 साल हो गए, वो अभी तक किसी ठंडे बस्ते के पार्लियामेंट के किसी ठंडे बस्ते में किसी फाइल में पड़ा हुआ नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा सोसाइटी अभी भी इस बात के लिए मेंटली या विलिंगनेस
थॉट बेस, अंदर से भी और दिमाग से भी। वो चाहते नहीं और उसको एक्स या वाई या जेड कोई भी कारण बता के उसको, ठीक है ना। अभी इतना इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा इसके बारे में जो ज्यादा जानना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि ज्यादा आप ढूंढ के लाएं और क्या क्या था, ये बिल कब किसने पेश किया, है ना, किस पार्टी ने पेश किया, किस पार्टी ने इसका समर्थन किया, किस पार्टी ने इसका विरोध किया, ये सब जो बाकी की जानकारी है वो अब आपको ढूंढ के लाना है नेक्स्ट क्लास के लिए। सबको समझ में आ गया? You have to get all the fact figure about the women reservation in parliament। ठीक, थोड़ी बात बताइए फिर आप अपने लेवल पे कितने लोग लेके आएंगे, हाथ पकड़ो जल्दी खाओगे। तो मुझे लग रहा है सारे ही लेके आएंगे। देखते हैं एक्चुअल सक्सेस रेट क्या है हमारे हाथों पर। गुड है, इतना आपने सोचा, करने की सोची, यही अपने आप में बिग अचीवमेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? हाँ, ये पार्लियामेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सबसे पहले कहाँ पे इनका विचार आया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया सबसे पहले कहाँ आया या कब आया या कौन लेकर आया? सर उस टाइम पे कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली जो इंडिया में चीज़ें हो रही थी वो नॉट सिर्फ इंडिया में चल रहा था, कि आउटसाइड वर्ल्ड बहुत पीस काम था। जो आपकी दूसरी कंट्रीज थी उनमें भी ये चीज़ें चल रही थी, वो एकदम पीसली उनका जो सिस्टम वाज नॉट सो रनिंग स्मूथली, तो वहाँ पे भी चीज़ें पैरेलली चल रही थी। तो जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जैसा मैंने बोला कि उन्होंने ये सब चीज़ों को नोटिस किया, बहुत मतलब बहुत ही क्लियरली डीप जाके नोटिस किया। एनीबॉडी आंसर? जो एक है उसके अलावा क्या आंसर करेंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब और कैसे आया या कब आया, ये विचार ही कब आया? दिस इज गुड क्वेश्चन। विचार बोलो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सीरीज द डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ मिलता है? दुनिया सबसे पहले डेमोक्रेसी जैसी चीजों को कौन हमें कब देखने को मिलता है? इफ यू गो टू द हिस्ट्री, अगर आपने 6th क्लास में पढ़ा हो, हाँ 6th क्लास में पढ़ा होगा तो कहीं मिला होगा रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ मिला? प्लीज खड़े होकर बोलो। ग्रीस में, कुछ हद तक ये भी आंसर सही है, पर बहुत इतना दूर जाके कहीं और नजदीक में ढूंढे। व्हाट वाज द इंडिया? So was not kind of republic, kind of not dictatorship but the monarchy. He was the great representative of monarchy. वो राजा था, वो प्रधानमंत्री नहीं था। हाँ, इंडस वैली का तो बहुत अच्छे से हमें पता नहीं। दोनों के बीच में कोई एक और है, इन दोनों के बीच में कोई एक और है, वो तो ये जहाँ पे हमें रिपब्लिक या पार्लियामेंट्री फॉर्म काइंड ऑफ रिपब्लिक हमें देखने को मिलता है। इंडिया दुनिया का सबसे पुराना रिपब्लिक कंट्री रहा है, इंडिया पूरी दुनिया का। अब वो आपको सोचना है कहाँ कब था रिपब्लिक। नाम बता दो, टाइम बता दो। उसको इतना खतरनाक राजा था, वो सबको छीन छान के अपने हाथ में ताकत लिया। मगध एम्पायर को, मौर्य एम्पायर को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने वाला बना। वो रिपब्लिक कैसे हो सकता है? रिपब्लिक समझ रहे हैं ना, सब मिल के सारे मिलजुल के चलाते हैं। there is no one supreme leader. There are some separation of powers. That is the features of democratic government. That is the feature of parliamentary government, which I am not asking. Renaissance बहुत बात की बात है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, यूरोप की बात है। 6th क्लास का अगर हिस्ट्री की बुक कह रहा हूँ तो दिमाग रिनेसांस में क्या घुमा रहे? हाँ गेस करो। ये सोशल साइंस में इंडिया के टॉपर है। सोशल साइंस में है ना, ओलंपियाड में इंडिया में नंबर 1 पोजीशन है इसका। इंटरनेशनल रैंक कितना है? 30। हाँ, जोन में से आज पूरे इंडिया में 4 है, फर्स्ट है। 5000 लेके बैठे, सारा पैसा इससे वापस ले लेंगे।
अगर इसने आंसर नहीं दिया। सर इसी को देखकर हम लोग मोटिवेट हाँ। अच्छा, मैं थोड़ा हिंट करता हूँ। लॉर्ड बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? वो तो लोकेशन बता रहे, इस जगह पे हुआ था वो। नहीं, वो ठीक है, जहाँ जन्म हुआ था वो ठीक है। वो जहाँ जन्म जिस घर परिवार में हुआ था उसके बारे में, वो कौन सा स्टेट था? ऐसे ही महावीर का, महावीर जानते हैं ना, जैन। इन दोनों का ही जन्म किसी न किसी रिपब्लिक में हुआ। उसका नाम एक का बताता हूं मैं, दूसरे का ढूंढ के लाओगे आप। जो लॉर्ड बुद्धा थे, उनका जन्म शाक्य रिपब्लिक, पिता उसके वहां के राजा थे। पर राजा कैसे वाले? जो डिक्टेटर की तरह काम करता है वो राजा नहीं था। सुदोधन नाम था उनका। एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते थे जो मिल के सभा बनाते थे, असेंबली। आपको मॉर्निंग असेंबली होता है ना? यस सर। हमारे स्कूल में भी एक है ना, स्टूडेंट काउंसिल। यस सर। डायरेक्टली स्टूडेंट काउंसिल स्कूल चलाता है। असेंबली देखना, बाकी चीजों को देखना, है ना। प्रिंसिपल टीचर अकेले डिसीजन नहीं ले। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ग्रुप जो मीटिंग्स होती है ना, तो इस तरीके से जो शाक्य रिपब्लिक जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है, वहां पे जो राजा थे वो अकेले राजा शासन नहीं करता था, लाइक डिक्टेटर और मोनार्की। अगर कोई भी काम करना होता था, वो अपने जो असेंबली के मेंबर्स हैं, 10, 15, 20 बड़े बुजुर्ग कोई भी हो सकते हैं, होते हैं, उनकी मदद से वो पूरी सरकार चलती थी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिपब्लिक। विच द क्वेश्चन शिवाज आस्क्ड, पहली बार विचार कब आया, कहाँ आया? तो सबसे पुराने विचार हिंदुस्तान में जो ढूंढेंगे, तो 6th सेंचुरी BC में ये विचार हमारे पास मिलता है। आप चाहे तो लिख लें 6th सेंचुरी BC, मीन टू से आज से कितने साल पहले? 6th सेंचुरी BC लिख लो। और मैं चाहता हूं उसको टाइमलाइन में दिखाओ, 6th सेंचुरी BC कहां पे आएगा? 6th सेंचुरी BC कहां पे आएगा? सर हो। ऐसे लाइन खींचना, ये 0 हो गया, देन ये 600 AD हो गया ऊपर, और 0 से पहले आएंगे तो 6th सेंचुरी क्या आएगा? ये बोलो, BC। इसी का एक मॉडर्न नोमेनक्लेचर है BCE। वेरी गुड, बिफोर कॉमन एरा। और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिलता है जो आज 2000। हम इसको 2000 कंसीडर करके चलते हैं। अब आपको यहाँ से बैक आना है कि कितने साल पहले की बात है, रिवर्स। अब काउंट करो कितने साल हुए। 2023 में हो गया। नंबर लाइन पे ना, मैथ में नंबर लाइन पढ़ते हैं ना, तो ये यहाँ 0 तक कितने हो गए? 2000। यस सर। 10, 21, 2100, 22nd, 23rd, 24, 25, 26। तो एक्चुअली में कब तक? आज से कब की बात है ये? 2600 BC। Common era, we having the culture and system, political system of republic. Earlier means that it's just kind of extension of those thought and patterns. So okay, good, very good presentation. So for the next time हम इससे भी अच्छा देखना चाहेंगे, है ना। और जिन बच्चों का नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, उनको चाहिए कि इनकी हेल्प ले, इनसे आइडिया ले। आपकी है ना, बस इसको पकड़ लो, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए इसको अपना गुरु बना लो।
ठीक है, और इसका समझ के फिर आपको भी उससे अच्छा करना है। ओके, थैंक यू।